Good morning, children. Today I have explained the properties of addition of fractions. Okay, so first property is change the order of two addends does not change the sum. Okay, children, जैसे आपने होल नंबर में पढ़ा था ना कि 2 plus 4 या 4 plus 2 but their sum is 6. Okay, so change the order of the addend but the sum is same. Okay, but in fraction देखो fraction में भी वही चीज़ है कि change the order of two addend does not change the sum. For example, जैसे 1/7 plus 3/7. Now change the order 3 plus 7 plus 1/7. But the answer is same. देखो 1/7 plus 3/7 is 4/7. Now here we change the order 3/7 plus 1/7 equal to 4/7. Okay, but the sum is same. So change the order of two addend does not change the sum. The sum will be the same. ओके आप किसी भी ऑर्डर में एडेंड्स को लिख दोगे लेकिन जो उसका सम आएगा वो सेम होगा. ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज चेंजिंग द वे इन विच वी ग्रुप द एडेंड डज नॉट चेंज द सम. ओके, फॉर एग्जांपल 4/10 plus 2/10 in bracket plus 3/10. तो सी चिल्ड्रन देखो 4/10 plus 2/10 is equal to 6/10. Okay, 4 plus 2 is 6. 6/10 plus then 3/10. तो 6 plus 3 is 9/10. तो sum of 4/10 plus 2/10 plus 3/10 equal to now 9/10. Okay, now change the grouping. देखो 4/10 plus in bracket we take 2/10 plus 3/10. Okay, now solve the bracket. देखो 2 plus 3 is 5/10. Then 5/10 plus 4/10 equal to 4 plus 5/10. तो 4 plus 5 equal to 9/10. तो see children, change the grouping but the sum is same. ठीक है, आपने यहाँ पे ग्रुप चेंज किया लेकिन आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, सेम आया, 9/10 and 9/10. Okay, so second property of addition is changing the way in which we group the addends does not change the sum. Okay, so this is called the grouping property of addition of fraction. Now see the third property, additive property of zero. अब आपने होल नंबर में पढ़ा था जैसे 4 plus 0 equal to 4 या 0 plus 4 equal to 4. ओके, तो 4 जैसे सी इन फ्रैक्शन 4/7 plus 0 equal to the same fraction 4/7, and when 0 plus 4/7 we get the same fraction, that is 4/7. So it means the sum of a fraction and 0 is the fraction itself. Okay, so there are three properties of addition. See children, now quick assessment. So quick assessment you have to do it in book. Okay, first is fill in the blanks, state the property used. देखो 1/7 plus 2/7 equal to 2/7 plus what, 1/7. ओके, तो दिस इज देखो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुपिंग चेंज हो गई है, 1/7 plus 2/7 equal to 2/7 plus 1/7. तो आप इसको बताओ, स्टेट द प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चेंज द ऑर्डर ऑफ टू एडेंड डज नॉट चेंज द सम. ओके, then see second, dash plus 5/34 equal to 5/34 plus 7/34. Okay, so this is also based on the first property. So what we write here, 7/34. ठीक है, 7/34 plus 5/34 equal to 5/34 plus 7/34. This is the missing number. ठीक है, यहाँ पे blank पे कौन सा आएगा, 7/34. Then see third one, 3 1/7 plus 0 equal to, this is based on the third property, additive property of 0. When we add 0 in any fraction we get the same fraction. Okay, so 3 1/7 plus 0 equal to 3 1/7. Clear, this is based on the third property of addition. Then see fourth one, 3 1/5 plus dash equal to the same fraction we get. It means here we add 0. Okay, when we add 0 then we get the same fraction. It means the missing number is 0. ठीक है, यहाँ पे missing number में कितना होगा, 0, and this is also based on the third property of addition. Then next one, fifth, 1/2 plus 1/4 in bracket plus 1/4
ठीक है, इक्वल टू. नाउ इन सेकेंड वन वी टेक 1/4 प्लस 1/5 इन ब्रैकेट. ओके, तो व्हाट इज़ द मिसिंग फ्रैक्शन हियर? इट इज़ 1/2. यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग हो गया है? यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका? 1/2. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी? सेकेंड प्रॉपर्टी इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, देन सिक्स्थ डैश प्लस 1/11 प्लस 1/8 इन ब्रैकेट. ठीक है, देन 1/6 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/11 इन ब्रैकेट प्लस 1/8. तो व्हाट इज़ द मिसिंग फ्रैक्शन हियर? देखो यहाँ पे आपका 1/11 और 1/8 आ गया, तो मिसिंग कौन सा है यहाँ पे? 1/6. इट इज़ 1/6 एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन problems based on real life situations. देखो, now see exercise 7E. Okay, 7E exercise is based on word problem. See first question, Babita has 1/3 meter of blue ribbon, okay, and 1/2 meter of red ribbon. तो how much blue and red ribbon does she have? ठीक है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज गिवन 1/3 मीटर, लेंथ ऑफ रेड रिबन इज इक्वल टू गिवन 1/2 मीटर. यू हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ब्लू एंड रेड रिबन डज शी हैव. तो आपको क्या निकालना है? टोटल लेंथ का मतलब क्या है? यू हैव टू ऐड द फ्रैक्शन 1/3 मीटर एंड 1/2 मीटर. ओके चिल्ड्रन, तो देखो आप किस तरीके से इसको करोगे. देखो स्टेटमेंट तो आपका हो गया, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ रेड रिबन. ओके, नाउ टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2. सो सी चिल्ड्रन 3 and 2 दे आर को प्राइम. चिल्ड्रन अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा ना कि अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे करके किया जाता है. देखो को प्राइम नंबर है तो को प्राइम में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 2 6. इट मीन्स द LCM ऑफ 3 and 2 इज 6. अब नाउ द सेम मेथड जैसे हम करते ही हैं एडिशन में. 6 है, LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. तो LCM नंबर इज 6 divided by, in first fraction the denominator is 3, okay, in bracket into 1 numerator, then plus sign here. LCM number is 6 divided by denominator number is 2, ठीक है, into 1 numerator is 1. now children 6 divided by 3 is 2, ठीक है, 2 into 1 plus sign. 6 divided by 2 is 3, 3 into 1 by 6. देखो 2 1s are 2, 3 1s are 3 by 6. तो 2 plus 3 equal to 5, ठीक है, न्यूमरेटर इज़ 5 एंड डिनोमिनेटर इज़ 6. तो 5/6 मीटर. तो बबीता हैज़ 5/6 मीटर ऑफ ब्लू एंड रेड रिबन. क्लियर? देन सी सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम. चिल्ड्रन इन 7E there are only 1 to 5 word problems. You have to do it in copy. 6 to 10 they are not in your syllabus. Okay, second question, रहमान बेक्ड अ पिज़्ज़ा एंड कट इनटू 6 पीसेस. ठीक है, रहमान ने एक पिज़्ज़ा को बेक किया और उसको 6 पीसेस में कट किया. देयर वाज 6/6. ही एंड हिज फ्रेंड एट 3/6 ऑफ द पिज़्ज़ा. ठीक है, 6 पीसेस में कट किया. ठीक है, उसके फ्रेंड जो थे उन्होंने 3/6 ऑफ द पिज़्ज़ा उसमें से खा लिया है. तो हाउ मच 6 वर लेफ्ट? तो उसके पास कितना 6 लेफ्ट बचा है. सी चिल्ड्रन देखो, दिस इज़ द केक. ठीक है, ये केक सॉरी दिस इज़ द पिज़्ज़ा. ये पिज़्ज़ा है एंड इट कट इनटू 6 पीसेस. उसने 6 पीसेस में इसको कट कर दिया. इट मीन्स ईच पार्ट इज़ 1/6. इसका मतलब 6 पीसेस में कट किया है 1 2 3 4 5 6. तो ईच पीसेस द फ्रैक्शन ऑफ 1 पार्ट इज़ 1/6. ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, पीसेस ऑफ 1 पिज़्ज़ा इज 6, फ्रैक्शन ऑफ ईच पिज़्ज़ा इज़ 1/6. तो पोर्शन ऑफ पिज़्ज़ा 8. अब उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कितना पिज़्ज़ा खा लिया है? 3/6 का मतलब 3 पीसेस खा लिया है एंड 1 पीस इज़ 1/6. एक पीस कितना है? 1/6. तो 3 पीसेस कितने हो जाएंगे? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू देखो 1 2 3 3/6. इसको सिंप्लीफाई किया, 3 1s are 3, 3 2s are 6. इट मीन्स हाफ पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा होल पिज़्ज़ा में से हाफ पिज़्ज़ा को खा चुके हैं. तो अब उनके पास कितना बचा? हाफ पिज़्ज़ा बचेगा. इतना पोर्शन वो खा चुके हैं, हाफ पोर्शन खा चुके हैं. तो इट मीन्स हाफ पोर्शन इज़ लेफ्ट.
हाफ पोर्शन का मतलब क्या हो गया, 3-6 पिज़्ज़ा वर लेफ्ट. तो एज दे एट हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा, सो हाफ 1/2 मीन्स हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा वर लेफ्ट. इट मीन्स 3/6 ऑफ द पिज़्ज़ा वर लेफ्ट. क्लियर? देन सी थर्ड क्वेश्चन. Neha bought one cabbage weight 7/9 of kg and one cauliflower weighing 3/4 of a kg. How many kilograms did the two weigh together? लिखा ना, two weigh together, it means you have to find the sum. आपको टोटल निकालना है. तो weight of one cabbage is given 7/9 kg, weight of cauliflower is given. Now you have to add. ओके आपसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल वेट. तो टोटल वेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? देखो, वेट ऑफ कैबेज, वेट ऑफ कॉलीफ्लावर, तो टोटल वेट 7/9 प्लस 3/4. अब देखो चिल्ड्रन, 9 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मीन्स वी टेक द एलसीएम ऑफ 9 and 4. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? आपने इसका एलसीएम लिया, फाइंड आउट किया, द एलसीएम इज़ 36. ठीक है, नाउ एलसीएम इज़ 36. सेम मेथड यू हैव टू फॉलो, जैसे आपको मैम ने बताया है कि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर. आपने इसको सॉल्व किया. ओके, वी गेट 55/36. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. तो देखो 36 बन जा 36. नाउ सब्ट्रैक्ट 15 - 6 इज 9, 4 - 3 is 1. So it is one whole number 19/36. So this is the total weight of both. ठीक है, both cabbage and cauliflower. Then see question number 4. A family eats 1/3 bread at a meal. ठीक है, कोई एक फैमिली है जो एक बारी में इतनी ब्रेड को खा लेती है, एक मील में इतना ब्रेड लेती है. तो विल 4 ब्रेड्स बी इनफ फॉर 3 मील्स? तो 3 मील्स के लिए 4 ब्रेड इनफ होगी. तो देखो इसको कैसे करके करना है. देखो, फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड इन 1 मील इज़ 1/3. तो कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर. देखो कितना आता है, 3 1 = 3 प्लस 1 4, तो 4/3. तो फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड इन 1 मील इज़ 4/3. अब फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड इन 3 मील्स में कितना हो जाएगा? 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3. इट मीन्स 4 + 4 + 4 इज़ 12, 12/3. ठीक है, 3 4s are 12. इट मीन्स 4 ब्रेड्स आर इनफ. ठीक है, तो यस 4 ब्रेड्स विल बी इनफ फॉर 3 मील्स. क्लियर चिल्ड्रन? देन सी फिफ्थ क्वेश्चन. मदर बॉट 2 chickens, one weight is this and the other is this. तो हाउ मच one weight more than the other? ठीक है, आपको क्या करना है चिल्ड्रन? वेट ऑफ 1 chicken इज गिवन, वेट ऑफ अदर चिकन इज गिवन, यू हैव टू कंपेयर. अब आपको मैंने कंपेयर बताया था, कैसे करके कंपेयर करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एंड हाउ मच मोर देन द अदर? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर वेट. ज़्यादा वेट में से कम वेट वाले को माइनस करना है. ओके, तो देखो फिफ्थ वाला में weight of first chicken 1/3/4 kg, convert into improper. It is 4 1s are 4, 4 plus 3 is 7, तो 7/4. weight of second chicken 1/2 kg, तो 2 1s are 2, 1 3, 3/2. okay, now compare 7/4 and 3/2 by cross multiplication. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 into 2 and 4 into 3, तो 7 2s are 14 and 4 3s are 12. तो 14 is the value of 7/4. ठीक है, and 12 is the value of 3/2. So compare it 14 and 12. So 14 is greater. It means 7/4 is greater than 3/2. Weight of first chicken, ठीक है, is more than the weight of second chicken. Now how much, कितना ज़्यादा है? तो you have to subtract. Now subtract किया, same method. देखो LCM of 4 and 2. देखो 4 comes in the table of 2. It means the LCM is 4. ओके, अब यहाँ पे LCM लिया, LCM लेके इसको पूरा पोर्शन को सॉल्व किया, तो वी गेट 1/4 kg. तो इट मीन्स द वेट ऑफ फर्स्ट चिकन इज़ 1/4 kg मोर देन द वेट ऑफ सेकेंड की चिकन. ओके चिल्ड्रन, सो कंप्लीट एक्सरसाइज 7E, क्वेश्चन 1 to 5 in your copy. Thank you.